Day 10. Double digits. Consistency is winning. Notebook ready? Let's speak. So, dear diary, today I learned which topic? So, it's 2 for before and after. So, let's get start. So, repeat after me, okay? Not an order, it's request. Today ने के लिए it's ID. Rule 2 plus main verb first plus object plus other word. अंग्रेजी सीखने के लिए to learn English. राई का पहाड़ बनाने के लिए to make a mountain of molehill. So yeah, this is phrases. I have already discussed about phrases in separate playlist, separate tongue twister playlist, vocabulary playlist. So you must check it out because it's also part of spoken English. Now for ने के लिए rule. For main verb for plus ing लगेगा इसमें object plus other word. अंग्रेजी सीखने के लिए for learning English. जीवन में आगे बढ़ने के लिए for moving ahead in life. आग में घी डालने के लिए add fuel of the flame. So now to and for in further explanation. To direction receiver किसको? Example, give the book to Ramesh. She is going to school. Second, purpose verb के साथ I study to pass the exam. He went there to help me. Reaction and feeling. So she is kind to me. This is important to him. Now for. First, benefit फ़ायदा किसके लिए? This gift is for you. She cooked food for her family. Duration समय के लिए I stayed there for 2 hours. He waited for a long time. Reason purpose noun के साथ This room is for study. He went to Delhi for a job. Support and against I am for you. Are you for or against this plan? So this is to and for, guys. Now we will discuss before and after. So where we use it. Before ने के पहले पहले सामने. Rule before plus main verb first plus ing object. गाना गाने के पहले before singing a song. उसे डांटने के पहले before scolding him. Scold यानी डांटना. After ने के बाद या बाद. Rule after plus main verb first plus ing लगेगा इसमें. Then object then other word. This is other word. खाना खाने के बाद आफ्टर टेकिंग फूड या और आफ्टर हैविंग फूड. हम जब खाना खाने की बात करते हैं तो टेक या फिर हैव का यूज़ करते हैं और आईएनजी लग रही है तो टेकिंग या हैविंग हो जाएंगे. तो आफ्टर टेकिंग फूड और आफ्टर हैविंग फूड. ओके, सो नाउ वी फर्दर डिस्कस बिफोर एंड आफ्टर. से पहले आफ्टर के बाद. सो टाइम से पहले कम बिफोर 10 AM. वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर. सीक्वेंस ऑर्डर के लिए थिंक बिफोर यू स्पीक. फिनिश होमवर्क बिफोर प्लेइंग. पास्ट टाइम रेफरेंस आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर. नहीं, जब बोलते हैं मैंने पहले देखी है मूवी. सो आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर. शी लिव्ड हियर बिफोर. वो पहले यहाँ रहती थी लाइक दिस. सो पास्ट टाइम रेफरेंस हो रहा है. नाउ आफ्टर बाद में. टाइम के बाद मीट मी आफ्टर 6 PM. राइट, वी विल टॉक आफ्टर लंच. ये टाइम के बाद में. सीक्वेंस एंड रिजल्ट. सो ही स्लेप्ट आफ्टर वर्किंग हार्ड. वह सो गया मेहनत करने के बाद. She felt tired after the journey. Future conditions. Call me after you reach home. So ये future है ना कि जब घर पहुँच जाओ तो बताना. तो ये future conditions. So call me after you reach home. I will go after I finish my work. So I hope you will understand before and after. So we have discussed to for before, after, to for and before after difference. Now we have to discuss ago, later and earlier. So what should I do? Let's study. So let's start timing. Then tomorrow we will discuss pronoun. That is very important. It's your base, guys. Then we will further move on modals like should, would, could, something like this. So let's discuss.
सो अगो पहले, पहले का समय, पास्ट टाइम बताने के लिए और प्रेजेंट टाइम से पहले की बात करता है रूल, टाइम प्लस अगो। तो पास्ट टाइम बताता है और प्रेजेंट टाइम से पहले की बात करता है, यानी पास्ट टाइम बताने के लिए मतलब जो बीत चुका है, और प्रेजेंट टाइम से पहले मतलब जो अभी चल रहा है ना उससे थोड़ी पहले बताने के लिए तो अगो का यूज़ करते हैं। जैसे जब हम कहीं पे लाइव होते हैं तो ये 1 मिनट अगो लास्ट सीन दिखाता है अगो, तो वो पास्ट हो चुका है लेकिन प्रेजेंट से थोड़े टाइम के पहले होता है। आई होप यू गॉट इट। सो रूल टाइम अगो, मैं उससे 2 दिन पहले मिला था। आई मेट हिम 2 days अगो, वह 1 घंटा पहले चली गई। शी लेफ्ट एन आवर्स अगो, तो ये पास्ट भी है और प्रेजेंट है, कुछ टाइम पहले गई है, तो शी लेफ्ट एन आवर्स अगो। नोट, अगो के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट यूज़ होता है। आई हैव मेट हिम 2 days अगो, प्रेजेंट परफेक्ट नो। आई मेट हिम 2 days अगो, सिंपल पास्ट। 2 days अगो 2 दिन पहले, एन आवर्स अगो 1 घंटे पहले। नाउ लेटर, बाद में, कुछ समय बाद। लेटर का यूज़ फ्यूचर या बाद में होने वाले काम के लिए होता है, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर, मतलब मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, तो फ्यूचर या बाद में होने वाले काम है, ठीक है। वह घर गई और बाद में वापस आई। शी वेंट होम एंड कम बैक लेटर। कॉमन मिस्टेक्स, आई विल मीट हिम 2 days अगो, नो। आई मेट हिम 2 days अगो, आई मेट हिम 2 days अगो। विल फ्यूचर का है लेकिन विल यूज़ नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हम अगो का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई। आई मेट हिम 2 days लेटर, जब पास्ट कॉन्टेक्स्ट ना हो तो आई मेट हिम 2 days लेटर, नो। आई विल मीट हिम लेटर, आई विल मीट हिम लेटर, ये राइट होगा, करेक्ट पास्ट कॉन्टेक्स्ट। ही अराइव्ड ऑन मंडे, आई मेट हिम 2 days लेटर, तो ये फ्यूचर का भी हो रहा है, मंडे के बाद 2 दिन बाद। नाउ अर्लियर, अर्लियर पहले, इससे पहले, पास्ट टाइम, मैं तुमसे पहले आया, आई केम अर्लियर देन यू। वह आज पहले चली गई, शी लेफ्ट अर्लियर टुडे। कंपैरिजन के लिए, वह मुझसे पहले पहुंच गया, ही अराइव्ड अर्लियर देन मी। यह ट्रेन उससे पहले आती है, दिस ट्रेन कम्स अर्लियर देन दैट वन। बिफोर प्लस स्पेसिफिक इवेंट, किसी काम से पहले, हमने इस पर पहले बात की थी। वी डिस्कस्ड दिस अर्लियर, मैंने उससे दिन में पहले मिला। आई मेट हर अर्लियर इन द डे। कॉमन मिस्टेक्स, आई मेट हिम 2 days अर्लियर, नो, जब रेफरेंस ना हो तो आई मेट हिम 2 days अगो। करेक्ट, ही केम ऑन मंडे, आई मेट हिम 2 days अर्लियर, रेफरेंस, सो दिस इज़ करेक्ट। ही केम ऑन मंडे, I met him 2 days earlier, so this is reference, so this is correct. So yeah, that's enough for today. Tomorrow we'll discuss pronouns. So it's time for quick affirmation. We will never forget affirmation, guys. Let's do the affirmation. So yeah, I'm improving daily. I take action, no procrastination. I'm proud of my 10 days streak. Streak means, एक जो हमने सीरीज शुरू की है वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, वो फ्लो, तो उसको स्ट्रेक बोलते हैं। सो या डे 10 डन, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, ये कमेंट बिलो योर सेंटेंस, कीप प्रैक्टिसिंग विद मी, सी यू सून, बाय बाय।